بیداغ کماری پیرش مریا خیل 1949 خیسین میں چک 17 ML پپلا ضلع میانوالی میں آباد کاری کا عمل شروع ہوا۔ عزت مآب بشپ نیکولس ہٹنگا نے جوزفا آباد گاؤں کو آباد کرنے کے بعد اپنی مکمل توجہ چک 17 ML کی آباد کاری پر مرکوز کی۔ عزت مآب بشپ نیکولس ہٹنگا نے اس گاؤں کو مریا خیل کے نام سے منسوب کیا۔ اسی سلسلے میں انہوں نے ریورنڈ فادر فالکن تسپسترا MHM کو چک 17 ML میں کیتھولک مسیحیوں کی آباد کاری کی ذمہ داری سونپی۔ یہ گاؤں تھل کا علاقہ تھا جو ریت کے بڑے بڑے ٹیلوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ اس منظر کو دیکھ کر یہ سوچ جنم لیتی تھی کہ یہاں آباد کاری کیسے ہوگی اور وسائل کہاں سے آئیں گے۔ یہ گاؤں اسلام آباد راولپنڈی سے 274 کلومیٹر کی مسافت پر تھا۔ میانوالی شہر سے 55 کلومیٹر اور پپلا سے 10 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا۔ شروع میں اس گاؤں میں 75 خاندانوں کو سینٹ جوزف پیرش چک نمبر 36 جنوبی سرگودا اور سینٹ فرانسس زیویئر پیرش سرگودا سٹی کے دیہاتوں اور دیگر اضلاع فیصل آباد سیالکوٹ سے لا کر آباد کیا گیا تھا۔ ان خاندانوں میں سے چند خاندان ہولی روزری پیرش گجرات سے آئے تھے، کیونکہ ریورنڈ فادر فالکن تسپسترا مریا خیل کی آباد کاری کی ذمہ داری لینے سے پہلے ہولی روزری پیرش گجرات میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے تھے۔ ان خاندانوں میں ایک بڑائی، لوہار، چوکیدار، چند دکاندار، ایک یا دو استاد اور ایک مناد شامل تھے۔ مریا خیل کو تقریباً 1240 ایکڑ زمین الاٹ ہوئی۔ اسی لیے فادر فالکن تسپسترا نے ان خاندانوں میں سے ہر ایک خاندان کو 15 ایکڑ زمین الاٹ کروائی۔ ریورنڈ فادر فالکن تسپسترا نے انہی خاندانوں کی مدد سے گاؤں میں مٹی کی موٹی موٹی دیواروں کا پیرش ہاؤس تعمیر کیا۔ یہ صرف ایک ہی بڑے کمرے کا پیرش ہاؤس تھا۔ اس وقت کی صحرا کی تپتی دھوپ اور گرمی سے بچنے کے لیے کوئی پنکھا موجود نہیں تھا، تو ایک بڑے سے کپڑے کو ایک لکڑی پر ڈال کر اسے چھت کے ساتھ باندھ کر ایک رسی کی مدد سے کھینچا جاتا تھا اور دوپہر کے وقت اسے استعمال کیا جاتا تھا۔ رات کے وقت موسم قدرے بہتر ہو جاتا تھا۔ اس مٹی کے گھر کو بعد میں لوگ ریورنڈ فادر فالکن تسپسترا کی درگاہ سے پکارنے لگے۔ ریورنڈ فادر فالکن تسپسترا اسی مٹی کے گھر کے سامنے لوگوں کے لیے پاک ماس ادا کرتے تھے۔ لوگ ریتلی زمین پر بیٹھ جاتے تھے، لیکن گاؤں کے دوسرے معاملات کے لیے وہ گاؤں کے درمیان نرم اور صاف ریت پر اکٹھے ہوتے تھے۔ وہاں پر ہی شام کی دعائیں، روزری اور رات کی دعائیں ادا کی جاتی تھیں۔ اسی لیے اس جگہ کو بعد ازاں مقدسہ ماں مریم کی پہاڑی کے لیے مخصوص کر دیا گیا اور چھوٹی سی پہاڑی اسی جگہ بنائی گئی۔ ماسٹر لازر موتی لال دعائیں کروانے میں رہنمائی کرتے تھے۔ گاؤں کی ریتلی زمین کو ہموار کرنے کے لیے کوئی مشینری موجود نہیں تھی۔
मसीही किसानों ने फितरत और अपने बैलों को इस्तेमाल किया ताकि रेत की सतह को हमवार किया जा सके, लेकिन उन्हें अपने बैलों को रेत के टीलों पर ही रखना पड़ता था, क्योंकि वहां रेत के तूफान आए दिन आते रहते थे। गांव के किसान और रेवरेंड फादर फॉल्कन तेस्पिस्त्रा मरियाखेल की तरक्की के लिए रेत के खिलाफ अपनी जंग लड़ते रहे। तूफान बहुत मुश्किलात पैदा करते थे, लेकिन रेवरेंड फादर फॉल्कन तेस्पिस्त्रा और गांव के किसानों के हौसले पस्त नहीं थे। जो ही गांव की जमीन की कुछ हालत बेहतर होने लगी तो गांव के इर्द गिर्द एक और तूफान जन्म ले रहा था, क्योंकि गांव के नजदीकी इलाकों का एक गिरोह इकट्ठा होकर आ गया। वो गांव की जमीन पर कब्जा करना चाहता था। उस वक्त के लंबरदार रहमत ने वक्त से पहले रेवरेंड फादर फॉल्कन तेस्पिस्त्रा को इस बात की खबर दी। रेवरेंड फादर फॉल्कन तेस्पिस्त्रा ने थल डेवलपमेंट अथॉरिटी के अफसरान से राब्ता किया। ये अफसरान हमेशा रेवरेंड फादर फॉल्कन तेस्पिस्त्रा की मदद के लिए तैयार रहते थे। कुछ इनकी मदद से और सबसे बढ़कर गांव के लोगों के इत्तेहाद की वजह से कोई गांव की तरफ आंख उठाकर भी ना देख सका। रेवरेंड फादर फॉल्कन तेस्पिस्त्रा के बाद रेवरेंड फादर डैनियल ब्रीन MHM मरियाखेल तशरीफ लाए। उन्होंने गांव तशरीफ लाते ही गांव के दूसरे कोने पर काहिनों के रहने के लिए नए पैरिश हाउस की तामीर करवाई। इस पैरिश हाउस में एक पानी का टैंक जो हाथ से चलने वाले नल के एक साथ बंधा हुआ था और उसके साथ ही एक बैतुल खला बाथरूम तामीर किया गया। 1952 के सीन में रेवरेंड फादर डैनियल ब्रीन ने थल डेवलपमेंट अथॉरिटी की मदद से गांव में स्कूल की तामीर करवाई। ये स्कूल 2 बड़ी जमातों, प्रिंसिपल का दफ्तर और एक बरामदे पर मुश्तमिल था। 17 जनवरी 1956 के सीन मरियाखेल की तारीख का नाकाबिले फरामोश दिन था, जब इज्जतमाब बिशप न्यूक्लियस हटिंगा की दावत पर कांग्रीगेशन ऑफ रिलीजियस ऑफ जीसस एंड मेरी सिस्टर्स की जमात तशरीफ लाई। रेवरेंड फादर दरमोत मकीना MHM के हमरा जिन 3 सिस्टर्स से बात ने मरियाखेल की जमीन पर कदम रखा, उनमें मदर मेरी गुटरुट जो अमेरिका से थी, मदर क्यून न्यूयॉर्क अमेरिका से और मदर फेबियन पाकिस्तानी थी। लेकिन उस वक्त ये सिस्टर्स लाहौर और मरी से तशरीफ लाई थीं। सिस्टर्स सहबात ने गांव के स्कूल को चलाने की जिम्मेदारी संभाल ली। सिस्टर सहबात जब गांव में आई तो उन्हें रहने के लिए कॉन्वेंट की जरूरत थी। इज्जतमाब बिशप न्यूक्लियस हटिंगा ने रेवरेंड फादर डैनियल ब्रीन से गुजारिश की कि वो पैरिश हाउस को खाली कर दें ताकि सिस्टर्स सहबात वहां रहाइश पजीर हो सकें। रेवरेंड फादर डैनियल ब्रीन और रेवरेंड फादर मेकाना ने ताबेदारी करते हुए पैरिश हाउस खाली किया और कुछ अरसा स्कूल के एक कमरे में रहाइश इख्तियार कर ली, जब तक नया पैरिश हाउस तामीर ना हुआ। नया पैरिश हाउस उसी जगह के नजदीक तामीर हुआ जहां रेवरेंड फादर फॉल्कन तेस्पिस्त्रा ने इब्तिदा में मिट्टी से एक कमरे की तामीर की थी। ये नया पैरिश हाउस
जल्दी में तामीर तो हो गया, लेकिन जल्द ही इस हाउस पर दीमक यानी सफेद चींटियों ने हमला कर दिया, क्योंकि थल के इलाके में ये बहुत कसीर तादाद में पाई जाती हैं। 1956 खेसीन में मुल्तान डायसिस ने डेरा इस्माइल खान इस्लामाबाद रावलपिंडी डायसिस में मुंतकिल कर दिया, तो रेवरेंड फादर डैनियल बरीन ने डेरा इस्माइल खान में रहाइश इख्तियार कर ली, क्योंकि वहां पर काहिन के रहने के लिए पैरिश हाउस मौजूद था। डेरा इस्माइल खान मुल्तान डायसिस में सेंट हेलन पैरिश के तौर पर मौजूद था। 1956 खेसीन में स्कूल की जिम्मेदारी संभालने के साथ साथ सिस्टर गुटरूड और सिस्टर फेबियन ने गांव में मौजूद डिस्पेंसरी का आगाज किया। ये एक ऐसा तोहफा इंसानियत था जिसे मरिया खेल और दूर दराज के इलाका जात कभी फरामोश नहीं कर सकते। उन सादा वक्तों में मरिया खेल और गिरदोनवा को फर्स्ट एड की सहूलत दस्तयाब थी, जिसमें बुखार, जुकाम, खांसी, नमूनिया, कैं और पेट के दर्द के इलाज के लिए अद्वियात मयस्सर थीं। बच्चों और खवातीन का इलाज सिस्टर्स सहबात के जिम्मे था, जबकि मर्द मरीजों के इलाज की जिम्मेदारी रेवरेंड फादर डैनियल बरीन की थी। मरीज बच्चों की बड़ी तादाद आसपास के इलाकों से इलाज के लिए आती थी। सिस्टर्स की इस खिदमत के वसीले से सैकड़ों लोगों ने शिफा पाई। सिस्टर्स ये काम खुशी और रहमदिली से करती थीं। इस खिदमत की बदौलत न सिर्फ मसीही बल्कि मुसलमान आबादी वाले लोग भी फायदा उठाते और सिस्टर्स की खिदमत को सराहते थे। सिस्टर्स मरीजों की तीमारदारी के लिए साइकिल पर सफर किया करती थी और पिपला और आसपास के इलाके में जाने के लिए ऊंट की सवारी इस्तेमाल करती थीं। इन जिम्मेदारियों के साथ साथ सिस्टर सहबात पासवानी खिदमत में काहिनों का हाथ बटाती थीं। खासकर घर घर जाकर लोगों से मुलाकात करना और उनके मसाइल सुनना शामिल था। उनके इस अमल से बच्चे और खवातीन बहुत खुश थे। सिस्टर्स सहबात ने खवातीन के लिए सिलाई सेंटर भी खोला और वफादारी से उनकी मदद की और उन्हें कपड़े काटने, कढ़ाई करने और सिलाई करने में मदद की। बहुत सारी लड़कियों ने इससे फायदा उठाया और अपने अपने खानदान की कफालत का सबब बनी। 1958 खेसीन में इज्जत माब बिशप न्यूक्लियस हटिंगा ने रेवरेंड फादर डैनियल बरीन को मरिया खेल में एक चर्च तामीर करने की हदायत की। रेवरेंड फादर डैनियल बरीन ने एक बड़ा सा बरामदा टाइप कमरा तामीर किया और उसके ऊपर गुंबद भी बनाया और इसी गुंबद में एक लालटेन भी रखी जाती थी। इस कमरे के सामने एक कुशादा मैदान था जो गांव की आबादी से काफी ऊंचाई पर था। लोग ज्यादा से ज्यादा पाकमास में शामिल होते थे। ज्यादा तादाद होने की वजह से लोग बरामदे के बाहर जमीन पर बैठ जाते थे। इतवार के रोज बहुत सुबह पाकमास अदा की जाती थी, क्योंकि जो ही सूरज निकलता तो वो गर्मी की शिद्दत को बढ़ा देता था और लोगों के लिए बाहर धूप में बैठना नामुमकिन हो जाता था। ये पहला चर्च उसी घर के नजदीक था
जो रेवरेंड फादर डैनियल बरीन ने तामीर किया और बाद में जीसस एंड मेरी सिस्टर्स को दे दिया गया। इस छोटे गिरजा घर को 25 मार्च 1955 खैसीन में इबादत के लिए मखसूस किया गया। 1955 खैसीन में से 1964 खैसीन तक इस गिरजाघर में लातीनी ज़बान में पाक मास अदा हुआ करती थी, जिसमें फादर सेवान गिरजाघर और अलतार की तरफ चेहरा करके पाक मास करवाते और इसी तरह मोमिनीन का तर्ज इबादत भी यही था। रेवरेंड फादर पीट डिब्रीडा MHM ने रेवरेंड फादर डैनियल बरीन के इसी किस्म के चर्च की तामीर को वुसअत दे दी और वहीं से इसी किस्म का बड़ा चर्च बनाने का ख्याल ले लिया। 1964 खैसीन में इज्जतमाब बिशप निकोलस हटिंगा ने ईद बिशारत के मौका पर चर्च का संगे बुनियाद रखा और उसे बिशारत मरियम के नाम से मंसूब किया, जो बाद अज़ां बेबाक कुमारी कैथोलिक चर्च के नाम से जाना जाने लगा और अब यही इसका नाम है। ये चर्च इतना बड़ा था कि गांव की बड़ी आबादी को अपने अंदर समा सकता था। इसकी कंक्रीट की छत कंक्रीट के सतूनों पर रखी गई थी और इसका सामने का हिस्सा ईंटों के खुले मेहराबों पर मुश्तमिल था। चर्च के सामने का हिस्सा हमवार था और इसके दोनों तरफ बरामदे थे, जहां 14 मकामात की तस्वीर अवेजा की जाती थी। पूरे कंपाउंड को एक दीवार के साथ सामने से बंद किया गया था, जिसमें मरकजी दाखिली दरवाजा और दाएं बाएं के दरवाजे थे। चर्च के साथ एक बुलंद मीनार तमीर किया गया, जिसमें बहुत बड़ा घंटा नस्ब किया गया। ये मीनार अपनी बनावट के लिहाज से एक मस्जिद के मीनार जैसा दिखता था। चर्च की इमारत शुरू करने से पहले बहुत सारे लोगों के साथ मुमकिना डिजाइन पर तबादला ख्याल किया गया था। बिलाखिर चर्च की पहली ड्राइंग एक डच आर्किटेक्ट माहिर तामीरात ने बनाई। इस मंसूबे की कुछ तफसीलात सेंट फ्रांसिस जेवियर पैरिश सरगोदा सिटी में बहस के बाद तब्दील की गईं। जिन लोगों से मशवरा किया गया वो थे रेवरेंड फादर लुइस ब्राडर, ब्रदर जॉन निक्सन और पी वैन क्लेमेंस, और उनके साथ सरगोदा सिटी में काम करने वाले जर्मन रजाकार शामिल थे, जैसे मान फाइडर क्रीमर, वुल्फ किंग मॉइजर, डिमॉड हर्डबिंग थे। रेवरेंड फादर जोसेफ हिप गार्डन MHM इस मंसूबा साजी में बराबर के शरीक थे, क्योंकि उन्होंने चर्च की तामीर के लिए आधे से ज्यादा रकम अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को बेशुमार खत लिख लिख कर जमा की थी। चर्च के असल डिजाइन में रोमन मेहराबे थी, जिसे मुशावरती टीम ने रद्द कर दिया। मिस्टर मान फाइडर क्रीमर ने एंटी चेन यानी मौजूदा मेहराब आर्च का डिजाइन पेश किया, जिसे सरगोदा की मुशावरती टीम ने मंजूर कर लिया और पास भी कर दिया। गांव के सारे मर्द बहुत हिम्मत वाले थे, क्योंकि वो अपने आप को हर मुश्किल काम के लिए पेश करते थे, चाहे चर्च की बुनियादों की खुदाई करनी हो, रेत के गड्ढे खोदनी हो या इन घड़ों में कंक्रीट तैयार करके भरनी हो।
रोजमर्रा दीवारों की चिनाई के काम के लिए सिर्फ 2 ही मिस्त्री थे, जिनमें से एक मिस्त्री दीवान जो कैथोलिक था और मरिया खेल का ही रिहायशी था, और दूसरा मिस्त्री मिर्जा यकूब एक कादियानी था जिसका तल्लक चक 16 ml से था। ये दोनों बेहतरीन मुमार थे। बाकी मुमार इनकी ज़ेरे परस्ती काम करते थे। फादर मासूफ ने जानबूझकर सिर्फ 2 मिस्त्रियों को ही काम पर रखा था ताकि काम की निगरानी बेहतर तरीके से की जा सके। रेवरेंड फादर पीट डे ब्रीडा मुमारों को हर रोज चर्च का डिजाइन समझाते थे, क्योंकि मुमार डिजाइन पढ़ नहीं सकते थे। रेवरेंड फादर पीट डे ब्रीडा ने चर्च की तामीर की निगरानी खुद की थी। रेवरेंड फादर पीट डे ब्रीडा अक्टूबर-नवंबर 2 माह के लिए बीमार हो गए थे और अस्पताल में दाखिल थे। इस अरसा के दौरान रेवरेंड फादर हरमन ब्राउन MHM ने चर्च की तामीर की निगरानी की और चर्च की छत पर लेंटर कंक्रीट भी इन्हीं की ज़ेरे निगरानी डाला गया। मिस्टर वुल्फकिंग मौजर ने SIT में लोहे के मेन गेट और चर्च के सतूनों के साथ लटकाने के लिए लोहे के शमादान बनाए। रेवरेंड फादर हरमन ब्राउन के 2 दोस्तों ने जो मियांवाली में काम करते थे, उन्होंने चर्च के अलतार का डिजाइन भी बनाया और उसकी तामीर भी की। गांव के लोगों ने न सिर्फ चर्च की तामीर में मुफ्त मजदूरी की, बल्कि अपने हदिया जात से भी हिस्सा डाला, जिसमें नकदी, गंदम, चने वगैरह शामिल थे। खवातीन ने इबादत के लिए कुछ चटाइयां भी बुनी, क्योंकि चर्च में लोग बेंचों पर नहीं बल्कि चटाइयों पर बैठकर इबादत करते थे। रेवरेंड फादर जोसेफ हिप गार्डनर्स ने न सिर्फ चर्च के लिए चंदा जमा किया, बल्कि उन्होंने एक इंसानी कद का सलीबी मुजस्मा भी चर्च के अलतार के पीछे नस्ब किया और चर्च के मीनार पर बुलंद आवाज वाली चर्च की घंटी भी नस्ब की। 8 दिसंबर 1965 के सीन में इज्जतमाब बिशप न्यूक्लियस हट्टिंगा ने काहिनाना बरादरी, सिस्टर सहबाग और सरगोदा शहर और जोसेफाबाद से आए कसीर तादाद में कैथोलिक मोमिनीन की मौजूदगी में चर्च की तकदीस की। 1972 के सीन में गवर्नमेंट ने गांव का स्कूल अपनी तहवील में ले लिया, लेकिन इसके बावजूद 35 साल सिस्टर सहबाग ने तदरीसी खिदमात जारी रखी। 2005 के सीन में इज्जतमाब बिशप एंथनी थियोडोर लोबो की काविशों से स्कूल दोबारा डायसीजन बोर्ड ऑफ एजुकेशन इस्लामाबाद रावलपिंडी डायसिस की स्पुर्दगी में आ गया। इज्जतमाब बिशप एंथनी थियोडोर लोबो ने दोबारा से कांग्रीगेशन ऑफ रिलीजियस ऑफ जीसस एंड मेरी सिस्टर्स से दरख्वास्त की कि वो स्कूल की जिम्मेदारियों को संभाल लें। उस वक्त के बाद सिस्टर क्लारा दीवान ने रेवरेंड फादर विली स्टेरिक्स, असातिज़ा, तुलबा और वालिदैन के साथ मिलकर स्कूल की ताज़ीन और आराइश, इमारत की मरम्मत और स्कूल कंपाउंड को खूबसूरत बनाने के लिए दिन रात मेहनत की। गांव के लोग बहुत खुश थे कि स्कूल का इंतजाम दोबारा से सिस्टर्स सहबाग के हाथ में आ गया था। 2011 के सीन में रेवरेंड फादर सोहेल पैट्रिक ने
गांव के दरमियान एक खूबसूरत पहाड़ी की तामीर शुरू करवाई, जिसे 2012 के सीन में मुकम्मल कर लिया गया। नई पहाड़ी की तकदीस इज्जत-माब बिशप रूफन एंथनी ने की। 2014 के सीन में रेवरेंड फादर एंथनी इलियास ने चर्च का मरकजी छोटा गेट खत्म करके बड़ा गेट लगवाया और चर्च के चौगिर्द दीवारों को ऊंचा करवा दिया। 2014 के सीन में गांव के चर्च की 50 साला जुबली रेवरेंड फादर एंथनी इलियास ने गांव की कलीसिया के साथ मिलकर बड़ी धूमधाम से मनाई, जिसमें डायसिस के काहिनों और सिस्टर सहबात ने कसीर तादाद में शमूलियत की। दिसंबर 2017 के सीन में रेवरेंड फादर फेबियन पॉल ने चर्च की ताज़ीन और राइश का काम शुरू किया। रेवरेंड फादर फेबियन पॉल ने चर्च कंपाउंड में यीशु के पाक दिल की ज़ियारतगाह बनवाई, जिसकी तकदीस फजीलत माब आर्च बिशप जोसेफ अरशद ने की। 2018 के सीन में फादर मासूफ ने चर्च की छत और दीवारों को मरम्मत और प्लस्तर करवाया। नीज, रंग रोगन, बाथरूम की सहूलत और सामान को महफूज रखने के लिए स्टोर भी बनवाया। चर्च की छत पर एक बहुत बड़ा और खूबसूरत क्रॉस यानी स्लीब भी नस्ब की और चर्च के कंपाउंड को सरसब्ज फूल पौधों से सजा दिया। 2021 के सीन में रेवरेंड फादर यूनुस रियाज ने चर्च के खुले मेहराबों को खूबसूरत दरवाजों और खिड़कियों के साथ बंद करवाया, क्योंकि इससे कबल चर्च के दरवाजे नहीं थे। सर्दी, बारिश और आंधियों के मौसम में इबादत करना नहायत मुश्किल होता था। चर्च में हर रोज इबादत से पहले दरिया बिछानी और फिर उठाना पड़ती थी। फादर मासूफ ने दरिया हटाकर पहली दफा चर्च में कारपेट बिछवाया। चर्च में नया साउंड सिस्टम रखा गया। अब मोमिनीन पुरसकून और शादमानी से इबादत कर सकते हैं। मरिया खेल गांव की मिट्टी बहुत जरखेज और खूबसूरत है, क्योंकि इसकी मिट्टी से ऐसी खूबसूरत शख्सियात खुदा ने तख्लीक की हैं जिनका नेमुल बदल कहीं नहीं मिलता। वो अपनी खुदादाद खूबियों की वजह से सबसे मुनफरद हैं। यानी इन्हीं अजीम लोगों की बदौलत मरिया खेल गांव की पहचान न सिर्फ हमारे वतन में बल्कि सरहदों के पार भी हो रही है। इस धरती को मिशनरी फादर्स और सिस्टर्स ने आबाद किया, इसीलिए धरती के बेटे और बेटियां, बिशप, काहिन, सिस्टर्स, ब्रदर्स और मुबशराने अंजील बनकर इस धरती पर किए गए मिशनरियों के एहसानात का बदला चुका रहे हैं। आइए इस गांव की खूबसूरत शख्सियात की औलाद के बारे में जानते हैं। मरिया खेल गांव और मरिया खेल पैरिश के काहिन सहबान रेवरेंड फादर रहमत माइकल हाकम, रेवरेंड फादर अनवर पतरस, रेवरेंड फादर मुख्तार आलम, रेवरेंड फादर फ्रांसिस तनवीर, रेवरेंड फादर यूसुफ अमानत, रेवरेंड फादर तारिक महमूद, रेवरेंड फादर डेविड जॉन,
Reverend Father Sabar Liaquat, Reverend Father Samson Shakar। مریا خیل گاؤں کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ اس نے پاکستانی کیتھولک کلیسیا کو ایک چوپانے آلہ یعنی بشپ بھی عطا کیا ہے۔ عزت مآب بشپ خالد رحمت OFM کیپ، بشپ آف کوئٹہ وکیریٹ۔ ڈومینیکن جماعت میں مریا خیل پیرش کے کاہن ریورنڈ فادر الماس الیاس، ریورنڈ فادر وقاص گیبریل۔ کیپوچن جماعت میں مریا خیل گاؤں اور پیرش کے برادر ایوب تھامس، برادر رضوان منظور۔ برادر آف چیریٹی کی جماعت میں مریا خیل کے برادر وکٹر الماس۔ مارش برادرز آف اسکول کی جماعت میں مریا خیل کے برادر فرانسس رحمت، برادر اینتھنی قمر۔ کانگریگیشن آف ریلیجیس اینڈ جیسس اینڈ میری میں مریا خیل گاؤں کی سسٹر سسیلیا رحمت، سسٹر سٹیلا بوٹا، سسٹر سوسن سٹینسلاس الارکھا، سسٹر ٹریزا رحمت، سسٹر سلیسٹین باغ، سسٹر کرسٹینا فیض، سسٹر برنادت خورشید، سسٹر کیتھرین ماریا نواب، سسٹر کلیمنٹین عنایت، سسٹر کلارا دیوان، سسٹر سٹیلا ماریا یونس، سسٹر روتھ سیمویل، سسٹر سنیتا یونس، سسٹر میشل سلیم، سسٹر بینش جاوید۔ پریزنٹیشن آف بلیسڈ ورجن میری سسٹرز کی جماعت میں مریا خیل گاؤں کی سسٹر ماریا شیرا، سسٹر نسرین ولیم، سسٹر فرخندہ طالب، سسٹر ایرن جوزف، سسٹر سنبل روکس، سسٹر سندل شریف۔ سسٹرز آف چیریٹی آف جیسس اینڈ میری کی جماعت میں مریا خیل گاؤں کی سسٹر الفریڈا عنایت، سسٹر تسنیم انور۔ فرانسسکن مشنریز آف میری سسٹرز کی جماعت میں مریا خیل گاؤں کی سسٹر زبیدہ جان۔ یونین آف سینٹ کیتھرین آف سیانا اسکول مشنریز ڈومینیکن سسٹرز کی جماعت میں مریا خیل گاؤں کی سسٹر روبینا یوحنا۔ ملکہ روزری کی ڈومینیکن جماعت ڈومینیکن سسٹرز آف سپارکل میں مریا خیل گاؤں کی سسٹر نورین ولیم۔ ڈاٹرز آف دی کراس کی جماعت میں مریا خیل گاؤں کی سسٹر سلیمہ چراغ دین۔ سوسائٹی آف دی ڈاٹرز آف دی ہارٹ آف میری میں مریا خیل گاؤں کی سسٹر غزالہ پیارا۔ مریا خیل گاؤں اور مریا خیل پیرش کے مناد صاحبان بابو کیفا پطرس، بابو محمود،
बाबू जावेद मार्शल, बाबू राहील जोसेफ, बाबू रोबन जॉन, बाबू एरिक विक्टर। बेदाव कमारी पैरिश मरिया खेल में खिदमत करने वाले पैरिश प्रीस्ट सहबान रेवरेंड फादर फॉल्कन तिस्पिस्त्रा MHM 1949 से 1953 के सीन तक, रेवरेंड फादर डैनियल ग्रीन MHM 1953 से 1957 के सीन तक, रेवरेंड फादर जोसेफ हुपगार्डनर MHM 1957 से 1958 के सीन तक, रेवरेंड फादर पीट डबरीडा MHM 1958 से 1966 के सीन तक, रेवरेंड फादर कार्ल हाइडीमैन MHM 1966 से 1967 के सीन तक, रेवरेंड फादर अलोशियस प्राडर MHM 1967 से 1970 के सीन तक, रेवरेंड फादर पीट कोमन MHM 1970 से 1975 के सीन तक, रेवरेंड फादर जेकब किलक्रर MHM 1975 से 1977 के सीन तक, रेवरेंड फादर अलोशियस प्राडर MHM 1977 से 1984 के सीन तक, रेवरेंड फादर एंथनी बनमन MHM 1984 से 1990 के सीन तक, रेवरेंड फादर अलोशियस प्राडर MHM 1990 से 1997 के सीन तक, रेवरेंड फादर विली स्टोरिक्स बेल्जियन प्रीस्ट 1997 से 2010 के सीन तक, रेवरेंड फादर सोहेल पैट्रिक डायोसीजन 2010 से 2014 के सीन तक, रेवरेंड फादर एंथन इलियास डायोसीजन 2014 से 2017 के सीन तक, रेवरेंड फादर फेबियन पॉल डायोसीजन 2017 से 2019 के सीन तक, रेवरेंड फादर यूनुस रियाज डायोसीजन 2019 से ताहाल खिदमत जारी रखे हुए हैं। खुदा के फजल से मरिया खेल गांव मुकद्दसा मां मरियम के जेरे साया 75 साल मुकम्मल कर चुका है। मैं मरिया खेल के काहिनों, सिस्टर सहबाब, ब्रदर सहबान, मुनाद सहबान और अहले कलीसिया को दिल की अथाह गहराइयों से 75 साला जुबली की मुबारकबाद पेश करता हूँ। आप सबको जुबली बहुत बहुत मुबारक हो। आओ मिलकर ये जश्न मनाएं। जुबली में खुशियों के रंग बखेरे हैं, जुबली में खुशियों के रंग बखेरे हैं, रोशन आज सी के दम से चेहरे हैं, जुबली में खुशियों के रंग बखेरे